Good morning, dear students. Chapter number 8, Gravitation. Today we have discussed a new topic, gravitational potential and gravitational potential energy. The work done by the gravitational force is bringing a body of unit mass. What is the gravitational force? Gravitational potential. तो gravitational potential का definition है the work done by the gravitational force. The work done by the gravitational force is bringing a body of unit mass. Unit mass means m equals to 1 kg. Body of unit mass from infinite distance to a given point in the gravitational field is called gravitational potential. The work done by the gravitational force is bringing a body of unit mass from infinite distance to a given point in the gravitational field is called gravitational potential, and gravitational potential is denoted by phi. So phi is equal to gme by re. So phi is equals to gme by re, and the unit of gravitational potential is joule per kg, and the dimensional formula is m0 l2 t minus 2. अब हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स is bringing a body of m mass from infinite distance to a given point in the gravitational field is called gravitational potential energy. तो सिर्फ आपको इतना ही चेंज करना है. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के अंदर यूनिट मास और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के अंदर m मास. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज डिनोटेड बाय v. तो v इज इक्वल्स टू फाई m. तो v इज इक्वल टू माइनस जी एम ई एम बाई आर ई. Gravitational potential energy always negative. The unit of potential energy is joule. Dimensional formula m1 l2 and t minus 2. अब उसका हम डेरिवेशन देखें तो ये अर्थ है. मास ऑफ अर्थ इज एम ई. कोई भी ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजीशन है h1 हाइट फ्रॉम द सरफेस. वो ऑब्जेक्ट को आपको सेकेंड पॉइंट पे ले जाना है एंड द हाइट ऑफ सेकेंड पॉइंट इज h2. इफ एनी ऑब्जेक्ट मूव्स इन अपवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम वन पॉइंट टू सेकेंड पॉइंट मीन्स फ्रॉम h1 height to h2 height, so weight force applied on the object is W is equals to mgh. बट यहाँ पे हाइट चेंज इन हाइट तो mg h2 minus h1. The gravitational force applied on mass. The gravitational force applied on mass m of object. तो F equals to formula is gmem by r square. तो work done applied from r1 to r2. What is r1? तो सेंटर से फर्स्ट नंबर का डिस्टेंस r1 एंड द सेकेंड पॉइंट इज r2. तो वर्क डन अप्लाइड फ्रॉम r1 टू r2. w12 इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट r1 टू r2 gmem by r square into dr. gmem कांस्टेंट 1 अपॉन r स्क्वायर का डेरिवेशन -1 by r. लोअर लिमिट इज r1 and upper limit is r2. upper minus lower तो gmem 1 by r1 minus 1 by r2. potential energy at r distance w is equals to minus gmem by r plus w1. अब इसमें r1 and r2 हम सब्स्टिट्यूट करें तो wr is equals to minus gmem upon r1 plus w1 and taking r is equals to r2. wr2 is equals to minus gmem by r2 plus w2.
चेंज इन वर्क डन, तो W2 माइनस W1, तो ये दोनों का माइनस करो, GMEM कॉमन, तो ब्रैकेट में सेम फॉर्मूला आएगा 1/R2 माइनस 1/R1। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी of two objects are separated by r distance minus g m1 m2 by r minus g m1 m2 by r, product of their masses and divided by distance, remember it. Gravitational potential energy on the surface of earth, on the surface of earth, तो minus g MEM by RE minus g MEM by RE, तो ये था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एग्जाम्पल 8.3, एग्जाम्पल 8.3, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 4 पार्टिकल्स प्लेस्ड एट द वर्टिसेस of a square of side L. Also obtain the potential at the center of the square. Here 4 particles are placed at the vertices and the mass of each particle remains same, small m, and the length of each side is small m, small l. 4 पार्टिकल है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के अंदर ये ध्यान रखना, अगर 3 पार्टिकल्स है तो पोटेंशियल एनर्जी के कितनी पेयर बनेगी, 1 2 1 3 एंड 2 3। 4 पार्टिकल्स है तो 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 एंड 3 4, टोटल 6 स्टेप्स। तो यहाँ पे हमने 6 स्टेप लिखे हैं, U इज इक्वल टू U12 प्लस U13 प्लस U14 U23 2 4 एंड 3 4। तो माइनस जी एम स्क्वेयर अपॉन R12 माइनस जी एम स्क्वेयर अपॉन R13 माइनस जी एम स्क्वेयर अपॉन R14 माइनस जी एम स्क्वेयर अपॉन R23 2 4 एंड 3 4। लेंथ आप एज्यूम कर, लेंथ फाइंड करो, तो सब में से माइनस जी एम स्क्वेयर कॉमन, 1/R1 R12 1 2 3 4, 1 2 के बीच में लेंथ है L, सेकेंड थर्ड के बीच में लेंथ है L, बट 1 एंड 3 के बीच में डायगोनल पॉइंट पाइथागोरस अप्लाई करो तो पूरा लेंथ आएगा √2L, पूरा लेंथ आएगा √2L, बट हाफ लेंथ इज √2L/2। तो पहले √2L लिखा, 1 4 के बीच में L, 2 3 के बीच में भी डिस्टेंस क्या होगा, √2L पाइथागोरस पर से, तो 1/L 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 4 टाइम्स, तो 4/L प्लस 2/√2L, 1 √2 कट, L कॉमन, तो 4 प्लस √2/L, तो U इज इक्वल टू माइनस जी एम स्क्वायर, U इज इक्वल टू माइनस जी एम स्क्वायर 4 प्लस √2/L, 4 प्लस √2/L। अब हम फाइंड करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द सेंटर। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए एक ही पार्टिकल का मास चाहिए, तो एक पार्टिकल के वजह से क्या होगा, माइनस जी एम बाई आर, ऐसे 4 पार्टिकल्स है तो मल्टीप्लाई बाई 4, एंड व्हाट इज आर डिस्टेंस एट द सेंटर फ्रॉम ऑल वर्टाइसेस, तो वो क्या होगा, पूरा डिस्टेंस है √2L, उसका हाफ होगा √2L/2, √2L/2 मीन्स L/√2। तो लास्ट आंसर इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल V इज इक्वल टू माइनस 4√2 GM/L, minus 4√2 GM/L. This is the most important example. Next is escape speed and escape energy. Most IMP topic. If a stone is thrown by hand, we see it falls back to the earth. कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आप अपवर डायरेक्शन में थ्रो करो तो वो वापस नीचे ही आएगा, जैसे क्रिकेटर 6 लगाता है तो वो बॉल फिर से अर्थ पर ही आएगा, वाई, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको इनफाइनाइट डिस्टेंस में ले जाना है,
जैसे कि रॉकेट हम लॉन्च करते हैं, तो कोई भी ऑब्जेक्ट को आपको अंतरिक्ष के अंदर, वैक्यूम के अंदर आपको भेजना है, तो उसके लिए रिक्वायर एनर्जी इज एस्केप एनर्जी. तो द डेफिनेशन ऑफ एस्केप एनर्जी is the minimum energy required for an object to reach infinite distance against the gravitational force is called escape energy. कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ले जाना है अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड, और उसके लिए जो मिनिमम एनर्जी आपको सप्लाई करनी है इज कॉल्ड एस्केप एनर्जी. And the object moves to infinite distance with minimum speed is called escape speed. Suppose final speed of object Vf at infinite distance. So total energy at infinite distance E infinity is equal to potential energy plus kinetic energy W1 plus 1 by 2 mvf square. If object moves with initial speed vi, from h plus re distance from the center of earth, so total energy at h plus re distance E is equal to kinetic energy half mvi square plus potential energy, but potential energy वो नेगेटिव होगा तो माइनस जी एम ई एम बाई एच प्लस आर ई plus W1. According to law of conservation of energy, initial total energy is equals to final total energy. दोनों को कंपेयर करो तो W1 कैंसिल हो जाएगा, तो होगा 1 by 2 mvi square minus gmem by h plus re is equals to half mvf square. If left term becomes 0, then speed of an object becomes minimum. अगर आपको फाइनल स्पीड मिनिमम करनी है तो लेफ्ट हैंड साइड 0 होना चाहिए, ये पूरा स्टेप. अगर पूरा स्टेप 0 है तो ऐसा फॉर्मूला होगा 1 by 2 mva स्क्वायर मिनिमम इज इक्वल्स टू जी एम ई एम बाई एच प्लस आर ई. तो वी आई स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन एच प्लस आर ई. रूट दे दो तो वी आई इज इक्वल टू 2gme अपॉन एच प्लस आर ई, एंड दिस द एस्केप स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट. इफ एच बिकम 0, सो वी आई मिनिमम इज इक्वल टू रूट ऑफ 2gme बाय आर ई. एस्केप एनर्जी इज इक्वल्स टू gmem बाय आर ई and is called binding energy. Escape energy is called binding energy also. और ये फॉर्मूला है एस्केप स्पीड का. ये फॉर्मूला के अंदर सारी वैल्यू हम जानते हैं. स्मॉल जी इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, वो सारी वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करो तो आपको आंसर मिलेगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड. यानी कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको इनफाइनाइट डिस्टेंस पे थ्रो करना है तो उतनी स्पीड से तो आपको थ्रो करना ही पड़ेगा, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड. एंड फ्रॉम दिस इक्वेशन एस्केप स्पीड does not depends on mass of object. Escape speed does not depends on mass of object. मीन्स छोटे से छोटा पार्टिकल है उसको अगर आपको इनफाइनाइट डिस्टेंस में भेजना है, या फिर बड़े से बड़ा रॉकेट है वो आपको लॉन्च करना है, तो इतनी स्पीड से ही आपको थ्रो करना पड़ेगा, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड. यानी एक सेकेंड के अंदर 11.2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा तो वो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चले जाएगा. 11.1 भी नहीं होना चाहिए, 11.1 भी होगा तो भी वो ऑब्जेक्ट वापस अर्थ पे आएगा. एस्केप स्पीड 11.2 एंड मोर देन 11.2, देन ऑब्जेक्ट रिच एट इनफाइनाइट डिस्टेंस. तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरी, एस्केप स्पीड एंड एस्केप एनर्जी. ये एस्केप एनर्जी का फॉर्मूला, ये एस्केप स्पीड का फॉर्मूला.